इसके पहले वाले सैटरडे के दिन हम लोग आम बात का निदान, संप्राप्ति और चिकित्सा के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें कुछ बाकी लग गया था, तो फिर थोड़ा सा हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि आम बात के बारे में। तो आम बात के बारे में निदान के बारे में हम बताए थे कि वृद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्नि निश्चलस्य स अश्मनि स्निग्धं भुक्त हेतु हानम व्यायाम को तथा वायुना प्रेरितो हामम श्लेष्म स्थानं प्रधावति तेन अत्यर्थम विदग्धो असो धमनी प्रतिपद्यते बात पीत कफे होता दुष्ट सोनो सह श्रुतांशु नानावर्ण विच्छल जनतांशु दौर्बल्यम गौरव हृदय च व्याधिनां हेम संज्ञो आम संज्ञो जार दारुण जुगपत त्रिक संधि प्रवेश का स्तब्धम च कुर्तो गात रामवाता सौच्यते। ये आम बात का निदान और संप्राप्ति पहले हम बताए थे, और आम बात के बारे में बताए थे कि आमीन सहितो बात, आम बात बताए थे। आमश्च बातश्च आम बात, हमने इसके बारे में बताया था कि आम बात के बारे में आमीन सहितो बात, आम बात, आमश्च बातश्च आम बात, अर्थात आम बात व्याधि में आम एवं बात का प्रकोप एक साथ होता है। प्रकोपित आम एवं बात कोष्ठ, त्रिक, प्रदेश एवं संधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण शरीर को स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी करके आम बात रोग की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तक हमने बताया था, आम बात का निदान बताया था, संप्राप्ति के बारे में बताया था, आम बात के लक्षण और कुछ मॉडर्न कंसेप्ट हम बता रहे थे उसी समय। इसको क्लोज करना पड़ा। तो ठीक है, आज आम बात के बारे में कुछ इसका मॉडर्न कंसेप्ट इसका हम बताने जा रहे हैं। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आम बाता आर मोर resemble with rheumatoid arthritis in modern science. RA is more than just arthritis. Many doctors call it rheumatism to emphasize the widespread nature of the process. The term rheum refers to the stiffness, body aching, and fatigue. So, although it is usually present with arthritis, it is a systematic disease with a wide variety of extra-articular manifestations. For this reason, rheumatoid arthritis is included amongst the systematic connective tissue disorder. Rheumatoid arthritis is the commonest form of chronic inflammatory joint disease. In its typical from RA is a symmetrical, destructive and deformating polyarthritis affecting small and large synovial joints with associated systematic disturbance. A variety of extra-articular features like pain, edema, carditis, lymphadenopathy, muscle weakness and wasting of the muscles, fever, skin atrophy, neuropathy, etc., and the presence of circulating antiglobulin antibodies are a factor. Whatever the initiating stimulant RA is characterized by persistent cellular activation, autoimmunity, and the presence of immune complexes at the site of articular and extra-articular lesions. Disease process जो है, as per Ayurvedic view, आम बाता is a disease of Madhyam Roga Marg, which involves mainly all the joints of the body or sandhis, which are the site of ama and shleshma. Madhyam Roga Marga is involved in this disease, so it is difficult to cure, said Achar Sushrut and Madhav Nidan. Achar Charak and Sushrut describe features of Ambata under Vata Vyadhi according to Charak description of Vata Vyadhi. When Vata affects the bone, there is painful swelling of the joints and immobility. Sandhis are the site of Shleshma and Ama. The main culprit of the disease, which also having the same
properties. Similarly, kapha is the allowed of accumulation in a various joints with the help of vitiated vayu. Imbalanced diet, improper diet and emotional stress leads to मंदाग्नि. मतलब अभी हम बताए हैं कि मंदाग्नि होता है वृद्धार्चस्य मंदाग्नि निश्चलस्य स. तो क्या होगा? Imbalanced diet, improper diet and emotional stress leads to mandagni. Hypofunctioning of agni, which contribute to the formation of ama, and when ama is allowed to accumulation in the joints, gradually tridosa disturbance occurs. The hallmark of Vata is a progressive pathological influence of Vata in the synovial joints and the resultant in a degeneration of joints. आचार्य माधव से वायुना प्रेरितम हामम श्लष्म स्थानम प्रधावती तेन तीर्थम विदग्धवशो धमनी प्रतिपद्यते. माधव निदान 25/2 में मेंशन है. द आमा runs towards the Slasma Sthanam like Amasa, all Sandhis, Sira Pradesh, promoted by Vikrit Vata dosa. Then combined with Kapha and runs to the circulation system and becomes more vitiated. And Ama creates Sangha in various srotas and produce may symptoms like Gaurav, etc. Vikrit Ama Ras Bad dosa further enter to the trick joint and other joints of the body, makes then a stiffness and painful resulting degenerative change in the joint. अब हम इसका पैथोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं. संप्राप्ति इसका क्या होगा? द टर्म संप्राप्ति इज अप्लाइड टू express the course of the appearance of disease starting from the nidan seven to vyadhi utpatti. The genesis of the disease by the specific action of vitiated dosha responsible for its causation is called samprapti. In short, the subsequent vitiation of dosha and circulation of vitiated dosha in the body resulting in the manifestation of the disease called samprapti. When a person suffering from mandagni takes viruddha ahara, performance viruddha chesta remains nishalvata, and those exercise just after taking asnigdha ahara, the arm produce and is carried to Slasma Sthan by vitiated vata. Arm moves towards the Slasma Sthana due to the stability of its biophysical properties. Here it is contaminated further and enhanced into general circulation through dhamanis. Now the arm circulates and spreads all over the body and further combines with the more and more tridosa, bath, pit, kapha, and thus this highly vitiated arm rasa acquires different colors and become more sticky as well as extremely virulent substance. In this state, this spreading arm rasa in the whole body through vesicular system creates obstruction at different channels of various system. This results very soon into weakness, heaviness in the heart and other various signs and symptoms. This vitiated ama in combination with vitiated bath gets accumulated in trick sandhi, producing a stiffness in the whole body, leading to the manifestation of the disease आम बाता. रेफरेंस माधव निदान 25/1/5. क्या होता है? कफा प्रकोपा, स्निग्ध आहार, विरुद्ध आहार एंड निश्चलता. उसके बाद मंदाग्नि, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ अग्नि होता है. हाइपो फंक्शनिंग ऑफ अग्नि, इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा. इम्प्रॉपर डाइजेशन जब होगा तो अपक्व अन्न रस बनेगा. अपक्व अन्न रस का होगा? सुकत्व या दुष्ट होगा.
उससे आम विष होगा। आम विष से क्या क्या हो सकता है? अल्सक, विसूचिका और विलंबक। आम विषा से आम रस होगा, आम रस धातु में जाएगा, उससे क्या होगा? माल न्यूट्रिशन होगा, कुपोषण हो सकता है। कुपोषण होगा तो ग्रहणी और कामला व्याधि हो सकता है। श्लेष्म स्थानम प्रधावती, श्लेष्म स्थान को प्रभावित करता है, उससे क्या होता है? अति विडक्ट होगा, श्लेष्म कला उरह शिरा इटी से इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद सर्कुलेशन थ्रू धमनी। श्लेष्म स्थानम प्रधावती तेन अत्यर्थम विदग्धो असी धमनी प्रतिपद्यते, मतलब सर्कुलेशन थ्रू धमनी में होगा। उसके बाद क्या होगा? संग होगा, स्रोत अभिसंध होगा, संग होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा, प्रोडर्मल स्टेज होगा। उसके बाद दौर्बल्य, हृदय गौरव आम है दोषाहीन त्रिक संधि प्रवेश का, त्रिक संधि में प्रवेश करेगा। उसके बाद आम बात रोग की उत्पत्ति होता है। इसको हम पैथोजेनेसिस ऑफ आम बात हम लोग करते हैं, जानते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे। पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि TCDC ये सार हम लोग कराते हैं, RH फैक्टर कराते हैं। हम लोग पेशेंट का पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कराते हैं हम लोग ब्लड फॉर TLC DLC ESR, RF कराते हैं, ASO टाइटर कराते हैं और CRP टेस्ट हम लोग कराते हैं। इससे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का क्या पोजीशन है, और पेशेंट का हम लोग स्टडी करते समय देखते हैं कि पेशेंट का ज्वाइंट स्वेलिंग, रिडक्शन ऑफ फिजिकल पावर और फीलिंग ऑफ हेवीनेस और फ्लक्चुअस लेथर्जी, इंडाइजेशन, उसमें क्या क्या होगा। ट्रीटमेंट का चार्ट हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अब हम लोग रोगी को क्या करते हैं? ASO टाइटर हम लोग करते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करवे करते हैं, ASO टाइटर करते हैं। न्यू अमेरिकन रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट 1981 में मेंशन हुआ, ANA टेस्ट करते हैं। एक्सरे का स्पेसिफिक पार्टिकुलर प्लेस का एक्सरे करके हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया। उसके बाद हम लोग इसका चिकित्सा पढ़ेंगे कि भाई इसका सापेक्ष निदान जो है, सापेक्ष निदान क्या हो सकता है। सापेक्ष निदान हम लोग आम बात और संधिवात, बात्रक और कॉस्टिको शीर्ष से हम लोग करते हैं। आम बात में बात कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि होता है, और संधिवात में बात की प्रधानता रहती है। बात्रक में गाउटी अर्थराइटिस में बात रक्त होता है, प्रधान रूप से त्रिदोषज व्याधि होता है। कॉटिक शीर्ष में बात्रक प्रधान त्रिदोषज होता है। दूसरे क्या होता है? आम बात में रस धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, संधि बात में भी रस धातु का होता है, और बात रक्त में रस एवं रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉस्टिक शीर्ष में भी रस एवं रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका साध्य साध्यता में हम लोग पढ़े थे। आम बात यदि स्वस्थ एवं बलवान व्यक्ति से एक दोषज नवीन तथा अल्प संधियों में हो तो वह साध्य होता है। द्विदोषज आम बात याप होता है। त्रिदोष प्रकोप से उत्पन्न आम बात दुर्बल व्यक्ति संपूर्ण संधियों में व्याप्त तथा शोधयुक्त होने पर हृदय साध्य होता है। चिकित्सा करने से कुछ समय तक ठीक रहता है, परंतु वर्षा ऋतु में या शीतल आहार विहार या ठंड प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में रहने से शीतल आहार विहार के प्रयोग से बार बार आम बात की तीव्र स्वरूप की उत्पत्ति हो सकती है, होने का चांस रहता है। उपद्रव कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया गया है कि संहिता ग्रंथों में आम बात के उपद्रव का अलग से वर्णन
प्राप्त नहीं होता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से हम अगर विचार करें तो माधव ने आम बात के लक्षणों में हृदय विकृति का उल्लेख किया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रूमेटिक फीवर से हृदय विकृति पाई जाती है और निम्नलिखित उपद्रव आम बात के रोगी से हम लोग होता है उपद्रव में, जैसे डिप्रेशन होता है, उसको अवसाद कहते हैं, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, अम्लपीत, हाइपर एसिडिटी होता है, परिणाम स्वरूप डुडनल अल्सर से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इंसोम्निया होता है, कार्डियक डिजॉर्डर, अंग विकृति, डिफॉर्मिटीज ऑफ ऑर्गन्स और ज्वाइंट्स होता है। क्या होता है उसमें अंग में विकृति होता है, डिफॉर्मिटी ऑफ स्वान नेक होता है, एक्सरे हम लोग कराते हैं तो चेंजिंग ऑफ द वेस्टिंग ऑफ द मसल्स के बारे में हम लोग एक्सरे द्वारा डिटेक्ट करते हैं। अब चिकित्सा सिद्धांत में हम लोग चिकित्सा के बारे में पढ़े थे कि लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानि, कटुनी च, विरेचनम, स्नेहपानम, संध्यावास्ति, छार वस्ति प्रशस्यते। सबसे पहले आम बात के रोगी का निदान रोगियों में निम्नलिखित चिकित्सा सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। लंघनम, लंघन कराते हैं। स्वेदनम, मुख्य नवीन आम बात में रुक्ष बालुका का पत्रपिंड स्वेद, बालुका स्वेद, जीर्ण आम बात में उपना इत्यादि का सेवन करने के लिए बताया गया है। उसके बाद तीसरा में तिक्त एवं कटु रस प्रधान औषधियों का प्रयोग बताया गया है। चौथे में दीपन पाचन चिकित्सा, पांचवें में विरेचन कुष्ठ शुद्धि, छठे में हम लोग बस्ती चिकित्सा और सातवें में एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। जैसे माधव ने लिखा है कि लंघनम, स्वेदनम, तिक्तम, दीपनानि, कटुनी च, विरेचनम, स्नेहपानम, संध्यावस्ति, छार वस्ति प्रशस्यते। चिकित्सा में हम लोग बताए हैं कि आम बात की संपूर्ण चिकित्सा को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। निदान, परिवर्जन, शोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा, योगासन तथा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा आप लोग भी स्टडी करेंगे। अब आम बात के बारे में योगासन चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा में आम बात से पीड़ित आतुर नवीन अवस्था में पूर्ण विश्राम लाभदायक होता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य नमस्कार, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, प्राणायाम एवं श्वासन आदि लाभकारी सिद्ध होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत उष्ण आतप स्नान, कटी स्नान, उष्ण मृत्तिका से मर्दन इत्यादि क्रियाएं लाभदायक होती है। अब व्यवस्था पत्र के बारे में हम लोग बताते हैं कि क्या करते हैं कि निदान का प्रयोग, संक्षिप्त क्रिया योजना निदान परियोजनम। सबसे पहले निदान का परिवर्जन हम करते हैं, जिस कारण से आम बात रोग होता है उसका हम लोग पहले परिवर्जन करते हैं। दूसरे नंबर में कफ एवं आम दोषनाशक, उष्ण रुक्ष कटुतिक्त रस प्रधान आहार का सेवन हम लोग कराते हैं। तीसरे नंबर में व्यायाम, प्राणायाम, आसन, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। और चौथे अवस्था में हम लोग निरामावस्था में स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, बस्ती कर्म का प्रयोग करते हैं। पंचकोल चूर्ण हम 2 ग्राम देते हैं रोगी को। आम बातारी रस 125 मिलीग्राम और रसराज रस 125 मिलीग्राम, तीनों को खल में हम लोग खल में मिश्रित करके एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को देते हैं, मधु के साथ देते हैं। उसके बाद हम लोग सिहनाद गुगुल, सिंह के समान व्याधि को हर लेता है, सिहनाद गुगुल 500 मिलीग्राम और अग्नि तुंडी बक्टी या अग्निमुख चूर्ण 250 मिलीग्राम हम लोग एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को उष्ण जल के साथ सेवन कराते हैं। भोजन के बाद हम लोग रसनादी क्वाथ 20 मिलीलीटर और एरंड स्नेह 20 मिलीलीटर, दोनों में से एक एक मात्रा सुबह और एक एक मात्रा शाम को हम लोग देते हैं। और रात्रि को सोते समय एरंड पाक 15 ग्राम या 10 से 15 ग्राम तक एरंड पाक देते हैं जल से। और सिंधवादी तेल से हम लोग या महाविषगढ़ तेल से स्थानिक अभ्यंग कराते हैं। 10 मूल क्वाथ से पंचकर्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं कि स्वेदन कराते हैं। 10 मूल क्वाथ से स्वेदन स्थानिक या सर्व शरीरगत कराते हैं। पेशेंट को सत्वाजय चिकित्सा जरूरी है। पथ्य में हम लोग क्या करते हैं, पंचकोल, सिद्ध जल,
बथुआ, पुननवा साग, परवल, करेला और पुराना चावल हम लोग एरंड, स्नेह, लहसुन, बैगन आदि जो है सो रोगी को आहार में हम लोग देते हैं। और अपथ्य में जो है दही, मछली, गुड़, दुग्ध, उड़द, दूषित जल और मधुर आहार इत्यादि जो है सो रोगी का अपथ्य है, यही हम लोग देते हैं। और मॉडर्न हम लोगों का गोल्स जो है वो क्या है? रिलीफ ऑफ पेन, रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस ऑफ ज्वाइंट फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट। और हम लोगों का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? रेस्ट टू द अफेक्टेड पार्ट इन एक्यूट कंडीशन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड्स लोकली, सर्जिकल ट्रीटमेंट इन completed केसेज, रेगुलर एक्सरसाइज, कंट्रोल डाइट और लाइफ स्टाइल चेंजिंग मॉडर्न साइंटिफिक बुक में मेंशन है, जो मैंने बता दिया। आज हम लोगों का टॉपिक जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर हम लोग अगला सैटरडे के दिन थोड़ा सा हम लोग ईश्वर भाईवा वॉइस के बारे में तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।